हाय, वेलकम टू चैनल साधन। दोस्तों, इस चैनल पे अब तक मैं 90s वीडियोस बना चुका हूं और उनमें से कुछ 35 से ज्यादा जो है जो स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने स्टॉक्स तो अमिताभ ने बता दिए, बट उनमें से किसे होल्ड करना है, किसे लंबे टाइम तक छोड़ देना है फॉर कंपाउंडिंग, that becomes a tricky subject in your mind. So this video is specifically for portfolio construction. Agar you have to create a portfolio for 5 years, then which stocks you should have. They should be able to grow their earnings for a longer time horizon so that you can piggyback on their growth, and in return you can end up being rich just by investing into these quality companies. There should be a framework. I mean, it is high time that you should develop a framework so that you can choose that which company you want to keep it for long term. I would like to help you with that. I have given you enough multibaggers, but which one to hold and how to pick up good multibaggers is a tricky task. Multibagger select भी कर लिया, but अगर आपने allocation उसमें hardly 2% रखा तो it doesn't help you much. And this episode is primarily focused on कि कैसे आप एक मल्टीबैगर्स का पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए। मैं एक ऐसा टूल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिस टूल की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ओके, दीज स्टॉक्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज टाइम इज अ फ्रेंड ऑफ गुड बिजनेस and you have to find good business. And you might be aware that I have started a service called follow my portfolio. ये जो स्टॉक्स मैंने अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो सब मेरे पोर्टफोलियो में भी है, उनके लोकेशन कितने हैं, उनकी बाइंग प्राइस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और whenever I will be buying these kind of businesses, not just जो existing है but नए स्टॉक्स भी मैं खरीदता हूँ, उसका रियल टाइम अलर्ट आपको जाएगा। So you will be actually piggybacking on my research under this service. So see you there. Please check out the link in the description. अभी तक मैंने अपने सारे वीडियोस में बिजनेस एनालिसिस काफी की है. Today is not the time for business analysis. Today I will be wearing a hat of financial analyst. इस वीडियो में I will be talking about numbers कि किन numbers, किन रेशियो को देखना चाहिए before you make your big decision to invest long term. वीडियो कंटिन्यू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, which will help us grow this channel. Today I will be talking about portfolio construction. पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करें। अभी तक हमने जो स्टॉक पिकिंग की बात की, दैट विल फॉर्म द बेस ओवर व्हिच यू विल बी एबल टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। तो फिलहाल चलते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की। मैं बात कर रहा था पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बेसिक बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो है एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। स्टॉक पिकिंग तो आप कर लेंगे, लेकिन एक फ्रेमवर्क के साथ अगर आप स्टॉक पिक करते हैं देन उसको आप पोर्टफोलियो स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें आप रेगुलर इंटरवल पे खरीद भी सकते हैं और उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। सो इन्वेस्ट एंड फॉरगेट exactly is not my style, but invest and hold it for next 5 years 6 years, that is what I prepared to do. So ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम 4-5 साल तक जरूर होल्ड कर पाए। तो उसके लिए आपको चाहिए एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि न्यूज चैनल पे जो बातें होती हैं कि ये स्टॉक, ये सेक्टर हॉट हो रहा है या ये सेक्टर में पैसे फ्लो हो रहे हैं, FIIs आर बाइंग दिस सेक्टर, these are very short term phenomena. उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता। तो एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाना बहुत ही जरूरी है और ये करने में मुझे काफी समय लगा। I deployed around 2-3 years of my investing life into finding a right investing framework. In today's journey, I will be taking help from a playbook of a legendary investor, and इनका नाम है भरत शाह। भरत शाह needs no introduction. But just to tell you in short that he has more than 30 years of experience and he has always focused on creating wealth through owning quality stocks. उन्होंने एक बुक लिखी थी 2013 में summarizing his investment journey and investment learnings, and इसका टाइटल है of long term value and wealth creation from equity investing, observations, ideas and reflection. It is a must read book, but I am taking the best pages out of this book for you right now. समझते हैं कि उनका बेसिक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है। सबसे पहले फाउंडेशनल थिंग्स एंड द बेसिक फाउंडेशन ऑन विच हिज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी इज बेस्ड इज स्टॉक प्राइस इज स्लेव ऑफ अर्निंग ग्रोथ। यानी स्टॉक प्राइस तभी मूव करेगी जब अर्निंग में ग्रोथ होगी। But Bharat says that for value creation, this is not merely the sufficient condition. Then what is the second part? What is the missing leg? He says the earning growth should be capital efficient. यानी यहाँ पे he is talking about quality of earning and quality of earning growth. Growth at any price
doesn't work for Bharat Shah, and that doesn't work for most of us. Or you will be very much interested to know that ये quality of earning growth कैसे judge कर. And then he comes with a ratio which is very much famous. It is called return on capital employed, ROCE. So ROCE अगर किसी कंपनी का अच्छा है और वो कंपनी अर्निंग ग्रोथ कर रही है, अगर बोथ टिक्स आर देयर, देन भरत शाह माइट बी इंटरेस्टेड इनटू बाइंग दिस बिजनेस. सो भरत शाह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैन बी समराइज्ड: इफ यू फाइंड अर्निंग ग्रोथ एंड सुपीरियर कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी, then you have found a winner, then you have found a multibagger. And in order to create multibaggers, he goes further and इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला भी है. So it's a totally quantitative. He defines compounding multiplier, CM, and CM is defined as a ratio between CAGR of investment returns, यानी स्टॉक प्राइस का ग्रोथ रेट ओवर अ पीरियड डिवाइडेड बाय उस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ ओवर द सेम पीरियड. सो अगर मैं CM5 की बात करूं, दिस मीन्स दैट दिस इज द रेशियो बिटवीन 5 years स्टॉक प्राइस कैगर डिवाइडेड बाय 5 years स्टॉक अर्निंग growth rate. It basically denotes return generated per unit of profit. So this framework is going to help us to find multibaggers. So he says there are 6 kind of businesses. सबसे favorite is winners. Winners जिसका CM is 2. ये ऐसे businesses होते हैं जिसमें generally ROCE बिजनेस का काफी हाई होता है, अपॉर्चुनिटी साइज भी काफी ज्यादा होता है, एंड दे एंजॉय अ सस्टेनेबल एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ. एंड ये CM 2 या इससे ज्यादा तब होता है जब मार्केट हैव नॉट गिवन देम द राइट वैल्यू इन अर्लियर डेज. सो CM greater than 2 denotes winners. Then second category is aspirers. Aspirers are those companies जिनका CM जो है 1.2 से ज्यादा है और 2 से कम है. Their key metrics are superior to peer group. वो आउटस्टैंडिंग होते हैं डेफिनेटली, एंड दे आर बेसिकली कंपनीज विथ इमर्जिंग मोड्स. और मार्केट इनके बारे में सोचती है कि these companies have a better future than its past. So aspirers and winners are 2 categories where we are focusing on today. Then there is other 4 categories. One is gentry जो CM 0.8 से 1.2 के बीच में है. वहां पे these are quite normal. These are like standard businesses who are in their steady state. Then there are certain businesses which one should avoid, and उसका CM जो होता है वो half और 0.8 के बीच में होता है. These businesses are called treadmill businesses. These are typically erstwhile market leaders, but market thinks that they have reached their पिनाकल. अब मार्केट में दे आर लाइक बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड. उनके मार्केट का ही ग्रोथ नहीं है, दे हैव हिट अ सीलिंग. इन बिजनेसेस को अपनी मार्केट वैल्यू रिटेन करने के लिए ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना पड़ता है, और प्रॉफिट और मार्केट उन्हें वैल्यू कम करता है. इन बिजनेसेस को अवॉइड ही करना चाहिए. देन देयर आर स्ट्रगलर्स एंड स्वेट शॉप्स. स्वेट शॉप्स जो है उनकी CM लेस देन 0 होती है, यानी कि डिस्पाइट पॉजिटिव प्रॉफिट कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट रिटर्न कंपाउंडिंग इज नेगेटिव. इसका पोटेंशियल रीजन ये हो सकता है कि कैपिटल एलोकेशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, एंड मार्केट हैज सेंस इट, और उनकी ROE और ROCE काफी कम होती है. मार्केट को डाउट होता है अबाउट द मैनेजमेंट इंटीग्रिटी. सो उसमें प्रॉफिट ग्रोथ तो होगी, बट उसके बैक टू बैक शेयर प्राइस ग्रोथ नहीं होती है. इन सर्टेन केसेस कंपाउंडिंग मल्टीपल कैन बी हायर, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में जहां पे कैश फ्लो से मार्केट वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है. कैपिटल इंटेंसिव सीमेंट की बात करें या स्टील की बात करें, तो वहां पे इफ कंपनी ओन्स अ ह्यूज एसेट, देन समटाइम्स मार्केट वैल्यू देयर एसेट बेस की ये आज नहीं तो कल, because of their asset they will grow, and that's why they give good valuation to those businesses. भले ही वो प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनका स्टॉक प्राइस ग्रोथ काफी अच्छी होती है. सो we'll talk about these kind of businesses in today's episode. So this picture is from a Twitter handle of अभी मुरारका. So मैंने इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने की कोशिश की over my existing portfolio and over the portfolio where I would like to be. Like मेरे वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं आज बात करूंगा, या मेरे पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक्स. आपके सामने जो लिस्ट है उसमें अल्काइल अमाइन है, जिसपे मैंने वीडियो भी बना रखा है. आपको विल सी कि ये जो CM greater than 2 का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो अल्काइल अमाइन इज अ बिजनेस जिसकी ROCE 56% है, जो कि काफी अच्छी है, और 5 years अर्निंग ग्रोथ भी 43% है. वहीं देयर आर बिजनेसेस सच एज इन्फोसिस, जिनकी ROCE तो 35% है, बट 5 year अर्निंग ग्रोथ इज barely 7%. बजाज ऑटो फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी. GMM फॉडलर, ये काफी पॉपुलर स्टॉक्स है, उनकी ROCE कम है, बट अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी है. सो दिस इज वन कैटेगरी. Let's talk about aspirers. So let's see the names here. So Atul,
Deepak Nitrite, they have very good ROCE. HLE Glasscoat, which is in my portfolio. HLE Glasscoat has generated good ROCE as well as great 5-year earning growth rate, 66%, which is the highest amongst this portfolio. वैसे ही गोदावरी पावर एक 37% ROCE है. So ROCE को अगर देखने का एक नजरिया ये है कि जो everybody would agree कि ROCE should be higher than cost of capital. बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 10%, 9%, 12, 13, 14% ही होता है, तो उससे ज्यादा ROCE इज डेफिनेट बहुत अच्छा है, ये नहीं कह सकते. सो माई बेंचमार्क फॉर गुड ROCE इज 30%. सो इस क्राइटेरिया पे यहाँ पे काफी 10-15 ऑप्शन हो जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन कि किसी की ROCE 30 है, अर्निंग ग्रोथ 30 है, किसी की ROCE 40 है और अर्निंग ग्रोथ कम है. तो ये जो ROCE और अर्निंग ग्रोथ जो अनबैलेंस्ड है, उनको कैसे जज करें? तो उसको जज करने के लिए भी भरत शाह ने एक फॉर्मूला दिया. भरत शाह का फ्रेमवर्क यूज करते हैं, एंड ही सेज दैट इवन इफ ROCE इज गुड यानी मोर देन 15%, बट नॉट ग्रेट यानी 30% से कम, तो ग्रेट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इफ margin of safety is high. तो margin of safety is a concept which is popularized by Benjamin Graham, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर कहे जाते हैं. और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि अगर किसी स्टॉक की वैल्यू 100 रुपीज है आपके हिसाब से और उसकी प्राइस जो है 110 है, तो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेगेटिव है. लेकिन वही प्राइस अगर 70 है तो वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30 का है, विच इज गुड इनफ. कभी कभी आपको 40 का भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सकता है. तो ऐसे बिजनेसेस में जहां ROCE इज नॉट ग्रेट बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज देयर, देन यू शुड जंप ऑन एंड इन्वेस्ट. You will make good returns. तो इसके एग्जाम्पल के बारे में आगे बात करेंगे. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां ROCE इज एक्सेप्शनल यानी ग्रेटर देन 30%, ग्रोथ इज गुड बट नॉट एक्सेप्शनल यानी 15 से 20% टाइप ऑफ ग्रोथ. मिस्टर शाह सेज दैट इन्वेस्टर कैन ऑब्टेन सुपीरियर रिजल्ट्स इफ ग्रोथ इज सस्टेनेबल. यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज नॉट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे ग्रोथ पे क्वेश्चन आ जाता है. ग्रोथ जो है मॉडरेट है, बट अगर वो सस्टेनेबल है और ROCE इज एक्सेप्शनल, देन दैट बिजनेस इज गुड. एक ऐसा बिजनेस इसमें ग्रोथ भी सुपीरियर हो, कैपिटल एफिशिएंसी इज आल्सो टॉप नॉच, उस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मार्जिनल भी है, रीजनेबल है, ज्यादा नहीं है, इट्स लाइक 10-15% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू यू. इवन देन इफ यू इन्वेस्ट इनटू देयर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है, तब भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सुपीरियर रिटर्न मिलेगा. सो दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और मैं बताऊंगा कि ये 3 फॉर्मूले को कंपाउंडिंग मल्टीप्लायर के फॉर्मूले के साथ एक साथ देखते हैं कौन से स्टॉक हमें निकल के आते हैं. हियर इज द लिस्ट. यू कैन सी दैट विनर्स डिफाइंड जो थे उसमें अल्काइल अमाइन, डिवीज लैब, बोरोसिल रिन्यूएबल, बजाज ऑटो, GMM फॉडलर एंड इन्फोसिस थे. लेट्स लुक एट देयर ROCE. सो इसमें अल्काइल अमाइन एंड डिवीज लैब एंड इन्फोसिस दे हैव सुपीरियर ROCE. और अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो अल्काइल अमाइन, बोरोसिल रिन्यूएबल एंड GMM फॉडलर दे हैव वेरी गुड अर्निंग ग्रोथ रेट. सिर्फ एक ही स्टॉक है अल्काइल अमाइन जो कि ROCE और अर्निंग ग्रोथ रेट दोनों में सुपीरियर है, तो वहां पे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं as suggested by Mr. Bharat Shah. And this is also a winner stock as well. अल्काइल अमाइन के बारे में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ. I will try to capture this stock in a detail in some time, so stay tuned for that. Now let's talk about aspirers. तो aspirer की लिस्ट में अतुल, दीपक नाइट्राइट, बालाजी अमाइंस, HLE ग्लासकोट और गोदावरी पावर, बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं. इसमें से मैं बात करूंगा जिनकी ROCE सुपीरियर हो. सिर्फ अतुल लिमिटेड को छोड़ दें तो बाकी सारे बिजनेसेस, या टाटा एलेक्सी हो, IGL हो, भारत रसायन हो, इन सब की ROCE जो है काफी अच्छी है, मोर देन 30% है. और 5-year अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो वहां पे बारिंग एशियन पेंट्स, टाटा एलेक्सी, अतुल एंड मैरिको, जो बेसिकली ओल्ड स्टैलवर्ड्स हैं, ओल्ड बिजनेसेस हैं, इनकी 5-year अर्निंग ग्रोथ थोड़ी सी प्लेटो हो चुकी है. तो वहां उनको छोड़ करके बाकी जो बिजनेसेस हैं जैसे दीपक नाइट्राइट, बालाजी अमाइंस, HLE ग्लासकोट, जो जनरली केमिकल एंड फार्मा से लिंक्ड हैं, और अबॉट इंडिया विच इटसेल्फ अ फार्मा प्लेयर, भारत रसायन अगेन एग्री एंड केमिकल स्टोरी है, और आरती ड्रग्स अगेन फार्मा स्टोरी. तो फार्मा, एग्री ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी ROCE में भी अच्छा कर रहे हैं और 5-year अर्निंग ग्रोथ भी इनका काफी अच्छा रहा है. दे आर एस्पायरर्स लार्जली. तो 2 पैकेट्स हैं, विनर्स और एस्पायरर्स. तो एस्पायरर में भी मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बता दिए जो भरत शाह के फॉर्मूले पे फिट बैठ रहे हैं. तो इसको उनके फ्रेमवर्क में डाल करके एक बार देखते हैं. तो फर्स्ट बकेट जहां पे ROCE इज गुड बट नॉट ग्रेट, बट ग्रेट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाई. वैसे केसेस है अतुल, बजाज ऑटो, बोरोसिल रिन्यूएबल.
दूसरे केसेस में हाँ ROCE इज एक्सेप्शनल, बट जहाँ पे ओके-इश ग्रोथ है, वैसे एग्जांपल है टाटा एलेक्सी। फाइनली ऐसे केसेस जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ एज वेल एज ROCE एवरेज इज टॉप नॉच, वैसे केसेस जहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वैसे केसेस आपके सामने हैं। तो ये केसेस हैं अल्काइल अमाइन, दीपक नाइट्राइट, बालाजी अमाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी ROCE 30% से ज्यादा है और 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज मोर देन 20%। तो दीज आर विनर्स एंड एस्पायरर्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं पी बेसिस पे जनरली नहीं करता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट, बट पी इज वन ऑफ द बेंचमार्क टू सी। तो मैंने पी रेशियो पैरेलली दिखा दिया है सो दैट यू हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी सब्जेक्टिव एंड उसके लिए आपको बिजनेस एनालिसिस समझनी होगी। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। यहाँ पे मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है जस्ट टू वीड आउट द बैड स्टॉक्स एंड अमंग्स, अगर ये सारे आपके पोर्टफोलियो में हैं तो इनमें से किसे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसके लिए आपको रिसर्च करना चाहिए। यू शुड नो द बिजनेस प्राइमा फेसी, और तब जाकर के आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपाउंडिंग बिजनेसेस ओन करनी चाहिए। और अगर आपको मेरे पोर्टफोलियो में क्या है ये जानना चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कौन से स्टॉक्स में पोजीशन लेता हूं, तो आप मेरा फॉलो माय पोर्टफोलियो सर्विस जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We are not SEBI registered investment advisors, so please conduct your research before you invest into any of these stocks. And these stocks are not stock recommendation, and I own some or few of them in my portfolio. Thank you.